Can you see this? Hmm. Just a glimpse for you. You see 91.67% EOIs have gone. 84% people have signed. 78% people have transferred the token. And almost 12.5% people, we have not even called for the drawdown yet. They have already transferred their complete 100%. Amazing. Now, practically when we get a little scared, we are left with 26 people because there are two independent directors. Okay. 26 people and 9% का अगर आप हिसाब लगाते हो तो approximately you are looking at, मतलब अगर मैं 25 का भी हर एक यूनिट लगाऊं तो 25 का 10 हो जाता है 2.5 करोड़। 10 हो गया, 2.5 करोड़ हो गया ना। 2.5 CR, yes sir. हाँ, तो 9% के हिसाब से आप फिर 5 करोड़ के आसपास देख रहे हो। 5 करोड़ का मतलब हो गया प्रैक्टिकली 20 लोग, और मेरे पास आ कितने सकते हैं, मतलब एकदम पैक 26, क्योंकि 200 लोगों से ज्यादा हो नहीं सकते। तो अभी ये स्कैरी सिचुएशन Okay. कि मुझे चाहिए कि कोई आदमी एटलीस्ट 1 करोड़ डाले, सो दैट देर इज वन क्लाइंट बट देर इज दिस 4 लोगों का स्लॉट जो है वो एक ही आदमी ने ले लिया, पूरा का पूरा यूनिट। Vaibhav ji, can you please give Durrani sir the rights to say something? किसको? Durrani sir, because you are the host now. Ask them. What am I supposed to do? Sir, ask them to unmute. Ask them to unmute. Ask all to unmute. Okay? I've done. You know, Vaibhav, what you just showed is amazing. And that's why I love Startup. That we just started, what, 3-4 weeks ago, this project? Correct. And you already booked 90%. And in that meanwhile, we have sold another one, which Oh, was really? a smaller one, 19 crores. I was telling Ashutosh. Wow. And, I think, I'm sure we have some clients here today and some agents. Only thing I want to say is, I have seen other projects. Yeah, there are some individual projects which are good, but those require 10, 15, 5, 2, 3, 4 crores of investment. This you can start with 25 lakhs. And with returns, what returns you get, I really feel this is great. And we are going to launch. Recently, I was talking to Gaurav today. We're going to launch to NRIs next week or two, Amazing. Okay, so I think Vaibhav ji, we should start the session. So sequence हमारा रहेगा कि how startup works, and then पीछे वाले. The last time what I had done, there is a small presentation which speaks about हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, what is the market gap. Exactly. And then we will switch to the details of the current opportunity that we have. Current opportunity, and then financial model. Financial model and Q&A, everything. Yes, yes. Okay. Okay. So first of all, thank you everyone for joining on a Sunday morning. I think our sessions have been going great so far because जिस तरीके से हर session के बाद we interact with a lot of people who participate, I think there is a long way to go. People are understanding why investing in real estate is probably more safer and more return generating as compared to any other asset class.
सो आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने ये प्रेजेंटेशन देखा होगा. मतलब दिस इज समथिंग विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम योर बेसिक एनी Google as well. This is a Carvey's Wealth report which was done almost 2 years back during the time of COVID. और ये नंबर इनफैक्ट 2022 के लिए तो और ज्यादा है. अगर ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो इंडिया में ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इट्स वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेफ एसेट क्लासेस. कि बैंक के पास बॉन्ड्स में पड़ा है या एफडीज में रखा है पैसा, या फिर गोल्ड सिल्वर डायमंड वगैरह बाय करके घर में रख दिया है या बैंक के लॉकर में रख दिया है. और एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें ज्यादातर इंडियंस, इनफैक्ट एनआरआईज एज वेल, सब लोग अपना पैसा जो है वो डालकर रख रहे हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में. अगर आप सिर्फ गोल्ड सिल्वर एफडी बॉन्ड्स और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का ही कंट्रीब्यूशन देखोगे, दैट इज मोर देन 65-68%. In the last 2, 3, 4, 5 years is when Indians have started participating a lot into financial markets. We have a lot of people, I guess, जो NRIs हैं, but we have a great example. Jawahar sir is there on the call. In a population of 44 to 48 crores in the US, and US today has 52 states. यहाँ पे इंडिया में 30 states हैं, I guess. वहां पर 44-45 करोड़ की पॉपुलेशन में द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फाइनेंशियल, इन कैपिटल मार्केट्स इज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारे इंडिया के हिसाब से 3% भी नहीं है. क्योंकि हमारे देश में टैक्स देने वाले लोग ही 4 से 5% है. बट ऑफ लेटली इन द लास्ट 3, 5, 8 odd years, people have started investing a lot into capital markets, into probably mutual funds for that matter, a little bit towards your pure equity in terms of your NSE and BSE. But those are things which are linked with the market. तो मार्केट से अगर लिंक कोई चीज चल रही है तो मार्केट ऊपर है तो आपके पास जो भी चीज ओन करते हो वो ऊपर है उसका प्राइस. मार्केट फॉर सम रीजन नीचे चला गया है तो आपका वो चीज नीचे चला गया. तो वो जो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी शायद फिजिकल एसेट्स में नहीं होती. अगर आपने रियल एस्टेट बाय किया हुआ है या प्रोबेबली आपने पैसा सिर्फ बैंक के एफडी या बॉन्ड में लगाया हुआ है. सो द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि इतना पैसा इंडियंस का इज गोइंग इनटू वेरी वेरी सेफ एसेट्स, जहां पर आदमी सिर्फ अपनी कैपिटल सेफ्टी के बारे में सोच रहा है. वेरी गुड, कैपिटल प्रिजर्वेशन हो गया. बट इंडिया का इन्फ्लेशन आज 5 से 6% बढ़ रहा है हर साल. तो आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पास ज्यादातर पैसा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में लगा हुआ है तो एक ना एक दिन अगले 10 से 15 सालों में पैसा जीरो हो जाएगा. क्योंकि आपको जितना रेंटल रिटर्न आ रहा है रेजिडेंशियल में 1, 2, 2.5, 3% इन एनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आधा है. आप हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में कमर्शियल रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट्स, रेजिडेंशियल, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, गोल्ड, इन सबका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और रिटर्न्स देने का जो नंबर है वो आप देखेंगे वो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं दिया है. रेजिडेंशियल अक्रॉस हैज क्रॉस्ड 8% only in that small duration of 2014 to 16 time period. कैपिटल मार्केट्स, गोल्ड, ये सब मार्केट से कनेक्टेड चीजें हैं. मार्केट ऊपर जा रहा है तो इनका प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है. मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर तो आपका प्राइस नीचे जा रहा है. आपका प्राइस आपके कैपिटल वैल्यू के भी नीचे जा सकता है, जो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं चाहिए. सो द आइडिया वाज सिंपल. अगर यही रिटेल इन्वेस्टर्स, यही इन्वेस्टर्स जो सारा पैसा सेफ एसेट क्लासेस प्रोबेबली और रेजिडेंशियल में पार्क कर कर बैठे हैं जहाँ पे रिटर्न 1, 2, 3% के ऊपर नहीं है, अगर इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप एक ग्रेड ए कमर्शियल में पैसा डाल सकते हैं, तो लोग क्यों नहीं डालेंगे? द रीजन इज क्यों नहीं डालेंगे. प्रॉब्लम क्या है कि कमर्शियल में पैसा क्यों नहीं डाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी.
क्यों डालना चाहिए? बिकॉज आपको डे वन से इनकम मिल रहा है, बिकॉज इनकम जनरेटिंग एसेट है, ऑलरेडी रेंटेड आउट एसेट में आप पैसा डाल रहे हो, क्योंकि वो ग्रेड बी प्लस, ग्रेड ए प्लस टाइप की बिल्डिंग है, ज्यादा से ज्यादा 2 5 साल 8 साल पुरानी, उससे ज्यादा नहीं। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आपके रेंटल्स के साथ साथ जो आपको मिल रहा है वो भी आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में मिल रहा है। तो आपके लिए जो भी आपके 2 3 गोल्स हैं वो सब कवर हो रहे हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल भी बना है, आप इन्फ्लेशन भी बीट कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल में रेंटल रिटर्न्स आर इन द रेंज ऑफ 6.5 टू एज हाई एज 9%, अगर कोई अच्छे ग्रेड ए वेयर हाउस में पैसा डाला है आपने। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म वैल्यू भी जो है वो भी आपकी उस एसेट क्लास में बन रही है। प्रॉब्लम कम्स इन कि ये काम अब तक हो क्यों नहीं पाया, कमर्शियल रियल एस्टेट मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है? आज इंडिया में हर साल 2.5 से 3 लाख घर बिक रहे हैं, रेजिडेंशियल आई एम टॉकिंग, पब्लिक डेटा। आप अभी गूगल करके देखिए 2020 में कितने घर बिके हैं, 2014 में जितने घर बिके थे उससे कम से कम 70 से 80 हजार ज्यादा। आज तक रेजिडेंशियल इंडिया के अंदर 2014 में बिका था करीबन 2,35,000 और 2,65,000 होम्स, जो इस साल का नंबर 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर 2022 पूरा, जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022। इसमें से 40% लोगों का पैसा जो है वो रेजिडेंशियल में गया है with the purpose of investment, not for the purpose of end use buying। आपको रहने के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए घर लेना है, वो पॉइंट सही है, एंड यूज घर है, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है। बट आपके पास अभी भी और डिस्पोजेबल इनकम है और आप बार बार रेजिडेंशियल में पैसा डाल रहे हैं, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू रियलाइज कि बॉस वो पैसा जो है वो कुछ रिटर्न तो दे ही नहीं रहा है। योर वैल्यू ऑफ 100 रुपी टूडे इज नॉट द सेम वैल्यू 3 4 years डाउन द लाइन, बिकॉज जिस एक्सपोनेंशियल से आपका 100 रुपये बढ़ रहा है 2023 24 25 26, उससे ज्यादा तेजी से तो महंगाई बढ़ रही है इंडिया के अंदर। सो द आइडिया इज कि कमर्शियल रियल एस्टेट इन जनरल लोगों की एक्सेसिबिलिटी में नहीं है, क्योंकि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है जो अच्छा रिटर्न देता है, जो ग्रेड ए क्वालिटी का है, उसके ऊपर या तो बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड उनको लेकर बैठे हैं, या डेवलपर्स के पास अभी भी वो उन्हीं के पोर्टफोलियो में रखा है, उन्होंने किसी को मार्केट में बेचने के लिए दिया ही नहीं है। क्योंकि एनीथिंग विच इज गिविंग यू रेंटल रिटर्न्स इन कमर्शियल रियल एस्टेट इन द रेंज ऑफ 5 6 7 8 9%, उसकी वैल्यू कम से कम 15 20 30 40 50 करोड़ या उसके ऊपर है। ये लोग जो रेजिडेंशियल में पैसा डाल रहे हैं, हर आदमी इतना पैसा नहीं डाल रहा, राइट? पब्लिक पैसा डाल रही है इन द ट्यून ऑफ 20 लाख 50 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। तो यही सेम लोगों को अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में इसी ट्यून में, इसी ब्रैकेट में उनके पैसा डालने के लिए मिले और उनको वही 6 7 8% का रिटर्न आ जाए, उसके ऊपर उनको टेनेंट को मैनेज नहीं करना, टेनेंट को मैनेज करने का काम कोई एक थर्ड पार्टी कर रही है स्ट्रक्चर में, वो थर्ड पार्टी प्रैक्टिकली हम है। आई विल कम ऑन टू दैट। आपको खुद की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको वो प्रपोजल ऑफर किया जा रहा है, उसका पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस, पूरी मार्केट का रिसर्च, क्या वो सही प्राइस पे ली जा रही है या नहीं, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या जो टेनेंट वहां पर बैठा है वो मार्केट से बहुत कम रेंटल या बहुत ज्यादा रेंटल तो नहीं दे रहा है, इट इज इन लाइन विद द मार्केट। ये हर चीज की डिटेल, ये सारा होमवर्क आपके पास पहले से अवेलेबल है, और आपको एक 50 करोड़ के ग्रेड ए रेंटेड आउट प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी में एज लो एज 50 लाख रुपए डालने का मौका मिल रहा है, और आपको वही 6 7 8% का रेंटल रिटर्न आ रहा है, जो अगर आप खुद 50 करोड़ रुपए डाल के उसके अकेले लैंडलॉर्ड बनते वो आता। How does that happen? How do we do that? So we as Strata, we have put in all this physical documentation, all this physical research, physical work onto a digital platform, so that आज जवाहर सर यूएस में बैठे हैं, या आशुतोष दिल्ली में बैठे हैं, सौम्या मैम
पूना में बैठी हैं, आप में से कोई आदमी जर्मनी में बैठा है, सब लोग हर प्रपोजल को, हर प्रॉपर्टी को, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सके और फिर एक इन्फॉर्म्ड और वाइज डिसीजन बना सके कि मुझे इस एसेट में पैसा डालना है या नहीं डालना है. तो वी आर अ टेक इनेबल्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म. What we do, we give the retail investors the accessibility that they can put as low as 25-30 lakh rupees in a grade A 40-50 crore property. And all of this happens through an online digital platform. It could be retail commercial, it could be office commercial, it could be industrial warehousing commercial. बिकॉज मुझे रेजिडेंशियल एटलीस्ट इंडिया के लिए क्यों नहीं करना, बिकॉज इंडिया में 2.5-3% से ज्यादा रिटर्न है ही नहीं, राइट. सो वी हैव बीन डूइंग दिस. ये 1-1.5 महीने पुराना है स्लाइड. टुडे वी स्टैंड क्लोज टू 850 plus crores. So when we are going out in the market and getting a property on our digital platform, उससे पहले जो 5-6-7 चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, टेनेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं, कि कल को कैपिटल इन जनरल सारी प्रॉपर्टीज जो वहां पर है उसके लिए आगे इंक्रीज होगी. ऑल ऑफ दैट होमवर्क is done by us as Strata. So we behave as your advisor initially. जब पूरी प्रॉपर्टी को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए हैं और एसेट को फंड कर दिया है प्रॉपर्टी को, तो हम एसेट मैनेजर बन रहे हैं आपके. टेनेंट से रिलेशन बिल्ड करना, 3-4 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेचना, एसेट मैनेजमेंट, टेनेंसी मैनेजमेंट का रोल स्टार्टा कर रहा है. और 3-4 साल के बाद जब एसेट को बेचा जाना है तो फिर से हम आपके लिए एडवाइजर का ही रोल प्ले कर रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि ऐसा होता कैसे. अगर आज आशुतोष एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का ओनर है डीएलएफ साइबर हब में, गुड़गांव के अंदर, नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव में डीएलएफ की ग्रेड ए प्रॉपर्टी है जो 1 साल पहले डिलीवर हुई है. फॉर एग्जांपल 10 माले की बिल्डिंग पूरी ऑक्यूपाइड है, गुड ग्रेड ए क्लाइंट्स, ग्रेड ए टेनेंट्स. एक फ्लोर आशुतोष ओन करता है जिसमें फेसबुक का कॉर्पोरेट ऑफिस है इंडिया का, जस्ट इमेजिन, और वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है. अब आशुतोष को पैसे की जरूरत है, आशुतोष को निकलना है वहां से, और सपोजिटली डीएलएफ का मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, सेल और परचेज प्राइस, उस हिसाब से उस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू, राइट वैल्यू 95 करोड़ होनी चाहिए. तो जस्ट इमेजिन एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर 8 करोड़ का रेंट आ रहा था, मतलब वो 8% रेंटल रिटर्न वाली प्रॉपर्टी थी. स्ट्राटा केम इनटू द पिक्चर. फेसबुक ने 4-5 साल का लॉक इन साइन किया है. हमने वो प्रॉपर्टी का प्राइस आशुतोष के साथ, जो करंट ओनर है, 95 करोड़ डिसाइड किया है. तो आपका जो 8 करोड़ का रिटर्न है वो अब 8% नहीं रहा, क्योंकि 100 करोड़ के लिए 8 करोड़ 8% होता है, 95 करोड़ के लिए 8 करोड़ 8.8% रिटर्न होता है. तो वो जो 5 करोड़ का गैप है, वो गैप भी इन्वेस्टर्स के ही रिटर्न पर ऐड हो गया है. तो अब क्या स्टार्टअप बाय कर रहा है? मैंने प्रॉपर्टी बाय नहीं करी. मैंने आशुतोष को अपनी बुक से एक 5% प्रॉपर्टी प्राइस या 10% प्रॉपर्टी प्राइस का टोकन चेक दे दिया है, और आशुतोष के साथ एक एमओयू साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका टिपिकल मतलब ये है कि आशुतोष इन द नेक्स्ट 1 month और 2 month पूरा का पूरा ये 95 करोड़ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा. बाय दैट टाइम अभी आप मार्केट में इस प्रॉपर्टी को नहीं निकालेंगे बेचने के लिए. इस मीनवाइल में पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस, फेसबुक के फाइनेंशियल्स, डीएलएफ साइबर हब में क्या राइट प्राइस चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारा ड्यू डिलिजेंस जो आप एज अ सिंगल ओनर खुद करना चाहेंगे कि क्या डीएलएफ साइबर हब का जो मार्केट है वो ग्रोइंग मार्केट है, वो मार्केट सैचुरेट तो नहीं हो गया है, टेनेंट जो है क्या वो इतना
रेवेन्यू कर रहे हैं, क्या इतना प्रॉफिट बनाते हैं कि 5 साल का लॉक इन सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब ड्यू डिलिजेंस मैं इस मीन वाइल में कर रहा हूँ, जब मैंने आशुतोष के साथ एक MOU साइन कर दिया। अब मुझे इस 95 करोड़ की प्रॉपर्टी में 100, 150, 170, 180 रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर आने। वेरी सिंपल मॉडल। अगर ये स्लाइड आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्वियसली मुझसे पूरे प्रेजेंटेशन के एंड में एक बार पूछ लीजिएगा, बट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहता है। SPV स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक एसेट होल्डिंग कंपनी। करंट ओनर जो आशुतोष है, उसकी उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी गई है। अब उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओनरशिप जो है वो इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज ऑफ द SPV आर इशू टू द इन्वेस्टर्स। तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप बाय कर रहे हैं टू द ट्यून ऑफ 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, वट एवर अमाउंट, और वो पूरी की पूरी एसेट होल्डिंग कंपनी SPV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस एसेट को जाके बाय कर रही है। ये पूरा ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंटली एस्क्रो अकाउंट जो ICICI बैंक के थ्रू है, ICICI बैंक उसका एस्क्रो एजेंट है, उसके थ्रू रूट हो रहा है। पैसा जो है वो आशुतोष को नहीं जा रहा है, पैसा जो है स्ट्राटा को नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर्स का पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है जो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही कनेक्टेड है, वहीं से पूरा पैसा रूट हो रहा है। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स इंडिया के या दुनिया के अलग अलग कोनों में है, तो फिजिकली प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा? तो स्ट्राटा जो मेरी एसेट मैनेजमेंट टीम है, इन्वेस्टर्स स्ट्राटा को एसपीवी का एसेट मैनेजर असाइन करते हैं कि बॉस मैं जर्मनी में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, प्रॉपर्टी बॉम्बे में है फॉर एग्जाम्पल। तो आप सारा मैनेजमेंट करें, आप बुक्स की फाइलिंग करें, TDS फाइलिंग, GST फाइलिंग, आप मार्केट में जो भी हलचल चल रही है उसकी रिपोर्ट्स मुझे शेयर करते रहें। प्लेन एंड सिंपल। Every property is bought by a private limited company. Investors buy shareholding in that private limited company by the route of an escrow account, and they assign Strata to be the asset manager. तो Strata का डायरेक्ट रिलेशन इन्वेस्टर से नहीं है। इन्वेस्टर्स एक कंपनी के ओनर है जिस कंपनी के अंडर एक इनकम जनरेटिंग एसेट है, और इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी का एसेट मैनेजर स्ट्राटा को असाइन कर दिया है। 1 साल 2 साल के बाद अगर इन्वेस्टर्स, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स 75% ये डिसाइड करते हैं कि स्ट्राटा अपना काम इनिशियली 1 साल 2 साल में अच्छे तरीके से कर रहा था, बट अभी थोड़ा लेथार्जिक हो गया है, हमको रिपोर्ट्स लेट आते हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स स्ट्राटा को एज एन एसेट मैनेजर रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सारी राइट, सारी ओनरशिप आप ही को है। तो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बदल रहा है, द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। इसके साथ साथ अब सारे इन्वेस्टर्स को सारी की सारी इंफॉर्मेशन पे ऑनलाइन एक्सेस है। क्या प्रॉपर्टी है, TDS सर्टिफिकेट्स, जो मंथली पे आउट्स आ रहे हैं, SPV कंपनी के लेवल पे 1 करोड़ का रेंट आया, 100 लोगों ने 10-10 लाख रुपए डाला है, तो सारे लोगों को 1-1% जो उनका रेंटल शेयर है वो ट्रांसफर हो गया। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट जो हर 6 महीने में हम लोग प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मार्केट स्टडी सब कुछ इन्वेस्टर के डैशबोर्ड पे डाल रहे हैं। ये सब उसी के सारे स्निपेट्स हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट की बाइंग से लेकर उसके ड्यू डिलिजेंस से लेकर सेलर के साथ नेगोशिएशन करने से लेकर आपको सारी चीज ऑनलाइन ही अवेलेबल कराना, ये सब मेरे एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर इन्वेस्टर को ये रियलाइज करना जरूरी है कि पैसा एक हार्ड रियल एस्टेट एसेट में जाए। अगर पैसा एक हार्ड रियल एस्टेट एसेट में जा रहा है, तो आज 100 लोगों ने पैसा डाला है, रेंटल वैल्यू आ रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल वैल्यू 3-4 साल में ही अचीव होगी, क्योंकि हर मार्केट की एक मैच्योरिटी होती है। हर एसेट को 3-4 साल में बेचा जाना है। तो एक इन्वेस्टर के लिए लिक्विडेट करने का अपना शेयर या जो भी उसने पैसा डाला है, उसके दिमाग में कुछ क्वेरीज हो सकती हैं। लिक्विडिटी के मीडियम्स क्या है? तो द फर्स्ट एंड द बेस्ट, द फॉरमोस्ट जो हम सारे इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है।
क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हो कंपनीज लॉ के अंदर, आप 1 साल तक कंपनी की शेयर होल्डिंग का पैटर्न नहीं बदल सकते। तो वो 1 साल सिर्फ वो एक होल्डिंग पीरियड है, बट वन नीड्स टू रियलाइज कि ये पैसा किसी कैपिटल मार्केट या किसी मार्केट लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है। अगर आप में से भी किसी रिटेल इन्वेस्टर का होराइजन एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना और 1 साल 1.5 साल में उसको बेचने का है, आई विल सजेस्ट आप फ्रैक्शन नहीं, आप इन जनरल भी किसी रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालिए, क्योंकि आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। अगर रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं, वो भी इनकम जनरेटिंग, तो इनकम तो आपको मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आ ही रही है। उस मार्केट की मेच्योरिटी और उस मार्केट का सैचुरेशन से पहले आपको एटलीस्ट 3-4 साल के लिए हर रियल एस्टेट एसेट में घुसना चाहिए, तभी आपका वैल्यू अप्रिशिएट होता है। सो द फर्स्ट इज एवरी इन्वेस्टर शुड स्टे टिल द सेल ऑफ द एसेट। तो 3-4 साल 5 साल का होराइजन अगर हर इन्वेस्टर का है, दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट्स व्हिच स्ट्राटा ऑफर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। बट एट द सेम टाइम किसी को नहीं पता है, पूरी दुनिया ने कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रॉन सब कुछ देखा है, ये जानते हुए कि असली जूस पूरी प्रॉपर्टी का तब निकलेगा जब पूरी प्रॉपर्टी बेची जाएगी। फिर भी अगर इन दैट जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी को 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद अपने पैसे की जरूरत पड़ जाती है, एंड दे कम टू अस कि यार मुझे, मेरी फैमिली में किसी की शादी है या मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो गया है, तो मैं हर मंथ के पे आउट्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे अभी एग्जिट करना पड़ेगा, बट और मैं एसेट की सेल तक वेट नहीं कर सकता, तो क्या उस इमरजेंसी में आदमी अपना इंडिविजुअल शेयर बेच सकता है? द आंसर इज यस। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी अपना शेयर होल्डिंग बेच सकते हो। इट इज कॉल्ड एज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी, क्योंकि आपके पास एक शेयर होल्डिंग है जो बेची जा सकती है। दैट्स कॉल्ड एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन। रीसेल प्लेटफॉर्म, ये स्ट्राटा का खुद का प्लेटफॉर्म है। आज मैं 18-19 प्रॉपर्टीज कर चुका हूँ। वी हैव मोर देन 45,000 ऑफ अ यूजर बेस। हर प्रॉपर्टी में 100-150 ऑलमोस्ट 170-180 लोगों ने पैसा डाला है। आप जिस प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हो उसमें भी आपके साथ 100, 110, 120, 150 लोग पैसा डाल रहे हैं। आप प्रोबेबली आईटी बैकग्राउंड से हो, आपका कोई बिजनेस अलग है, आप कहते हो कि अब मेरे पास तो कोई फैमिली फ्रेंड्स है नहीं, क्या आप अपने ही रीसेल प्लेटफॉर्म पे मेरे को मेरा इंडिविजुअल शेयर बेच सकते हो? द आंसर इज यस। बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, जब आप ये इंडिविजुअल शेयर की सेलिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो, you are not actually looking at a value of the capital upside, because चाहे वो प्रॉपर्टी 1 साल के बाद 5-10% के भाव पे बढ़ भी गई होगी, लेकिन आप 1.5 साल के बाद अगर इंडिविजुअली निकल रहे हो, तो वो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक नोशनल वैल्यू है। आपको फंड्स की इमरजेंसी है, इसके लिए आप अपना इंडिविजुअल एग्जिट कर रहे हो और कोई बंदा आपका शेयर बाय कर रहा है। पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेची जा रही। अगर पूरी प्रॉपर्टी बेची जाती तो वैल्यू अप्रिसिएशन मिलता, लेकिन आप उससे पहले ही निकल गए, राइट? तो क्या इंडिविजुअल शेयर सेलिंग हो सकती है? द आंसर इज यस। बट एट द सेम टाइम वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि असली वैल्यू अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप मंथ ऑन मंथ इनकम एंजॉय कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपने 3-4 साल अपना मंथली इनकम एंजॉय करके एक्चुअल सेल ऑफ द एसेट तक आप लोगों ने वेट किया है। गॉट इट? पब्लिक ट्रस्ट और फॉरेन नेशनल के अलावा सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियंस, एनआरआईज, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ होल्डर्स, एनीबडी एंड एवरीबडी हु कम्स अंडर द बेसिक रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई कैटेगरी। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपकी खुद की कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, आपने बना रखी है फैमिली में, कोई LLP फर्म है, हर नेचर ऑफ एंटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। की इन्वेस्टमेंट टर्म जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम इज द 25 लाख। 25 के ऊपर डायरेक्ट आपको 50 या 75 नहीं जाना है। 25 के ऊपर आप मल्टीपल्स ऑफ 5 में भी पैसा डाल सकते हैं। और हर प्रॉपर्टी में देयर इज एन अपर कैप कि आप 10 to 12% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे, बिकॉज मैं पूरे इस स्ट्रक्चर में मेकर और चेकर हूँ। मुझे मेक श्योर करना है कि बाकी जो 100 लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे।
राइट? तो रिकमेंडेड टाइम पीरियड ऑलवेज 3-4 साल का रहता है। एवरेज हम जिन भी एसेट्स में हम लोगों ने पैसा डाला है उसमें 6-7-8% का रिटर्न रहा है, रेंटल रिटर्न्स, एंट्री यील्ड। सो और आप रेंटल यील्ड अलॉन्ग विद कैपिटल अपसाइड देखते हैं तो आप 4-5 साल के सिनेरियो में 12 से 15% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज IRR एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक अबाउट वेयर डू वी स्टैंड टुडे। सो आप नीचे देखेंगे तो दीज आर द काइंड ऑफ क्लाइंट्स। वेस्ट साइड एक रिटेल एसेट जो हमने किया है, कैप जेमिनी, आई एम श्योर पीपल नो अबाउट द कंपनी। प्यूमा का हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर में है, वो हम लोगों ने फंड किया था अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़। यूबीएस से स्विस बैंक की हमारा हैदराबाद में हमने एक एसेट फंड किया था इन दिसंबर 2020। वेकफिट, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैट्रेस एंड होम फर्निशिंग कंपनी राइट नाउ बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस सॉर्ट ऑफ एसेट, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर फुट का हम लोगों ने किया है। सो ऑल इन ऑल वी आर करंटली मैनेजिंग क्लोज टू 26 to 28 lakh square foot spread across 850-860 crores. लास्ट रिसेंट अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों ने करी है एज अ कंपनी स्ट्राटा, लोगों के पास ये सवाल रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो स्ट्राटा के थ्रू ही कर रहे हैं। स्ट्राटा इन जनरल एज अ कंपनी, आर देयर एनी मेंटोर्स बिहाइंड? क्या कुछ लोग पीछे स्ट्राटा को बैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ process, performance, in terms of funding as well? What if something goes wrong with Strata? So we as a company, Strata as a company, we are backed by these 4 very, very large venture capitalist and private equity fund guys. Elevation Capital and Mayfield, they are one of the largest private equity fund guys जिन लोगों ने क्लियर टैक्स, बुक माई शो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इनिशियल डेज में बैक किया था। कोटक, विच इज कोटक बैंक्स प्राइवेट इक्विटी आर्म इन इंडिया, एंड ग्रूहाज इज, आई एम श्योर जितने लोग रेजिडेंट इंडियंस हैं और कैपिटल मार्केट में पैसा डालते हैं तो जेरोदा ग्रुप जो है, निखिल कामत है, नितिन कामत, ग्रूहाज इज अ कंपनी ऑफ निखिल कामत। तो वो एक प्रॉपटेक फंड है जिसके थ्रू वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दीज आर दीज 4 वेरी वेरी लार्ज फंड गाइज हु आर बैकिंग स्ट्राटा एज अ कंपनी। एज इट इज, आपके इन्वेस्टमेंट की डिपेंडेंसी स्ट्राटा के ऊपर नहीं है। आई एम जस्ट अ मीडियम फॉर यू जो ये पूरी चीज को स्ट्रक्चर कर रहा है। मेरे कल को एक्टिव रहने से या नॉन एक्टिव रहने से आपकी कैपिटल की सेफ्टी या आपकी मंथ ऑन मंथ इनकम, किसी भी उस चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉर्पोरेटली गवर्नड बना दिया है। आप जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो उनकी हार्ड कॉपीज कस्टोडियन की कस्टडी में रहती है। HDFC एंड ICICI बैंक आर द लीडिंग बैंकर्स, जिसमें से ICICI उस एस्क्रो अकाउंट को मैनेज कर रहा है जहां से पैसा आ रहा है और जहां पे पैसा जा रहा है। 10 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक जितनी भी बार पैसे का क्रेडिट और डेबिट होता है, रेजर पे आपके प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है, उसका एक ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट आपको बैकएंड से आ जाता है। विस्तारा इज द ट्रस्टी इन द होल थिंग। तो विस्तारा इस पूरे प्रोसेस में एक क्लास मॉनिटर की तरह बिहेव कर रहा है, जो मेक श्योर करता है कि जब भी कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है एक एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, तो आप लोगों के बिहाफ पे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स असाइंड है जिनके पास इक्विटी 0 है उस कंपनी में, और वो आपके बिहाफ पे पेपर वर्क पे साइन कर रहे हैं। विस्तारा मेक श्योर कर रहा है कि 100 रुपए का रेंट एस्क्रो अकाउंट में आया, 100 रुपए का रेंट सबको पास ऑन हो गया विदाउट अ लीकेज ऑफ सिंगल रुपी। ऑल ऑफ दिस इज डन बाय विस्तारा। So this was in general for everybody to understand कि क्या मार्केट में गैप है और कैसे सारी चीजें फंक्शन करती हैं। आई विल क्विकली गो टू द opportunity that we have right now
जो अवेलेबल है, जिसमें ये आप में से जितने भी लोग सब सारा का सारा ये स्ट्रक्चर समझने के बाद, इफ यू want to end up investing, you have this which we can offer you right now. We are talking about बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे के अंदर L&T रियलिटी ने ऑलमोस्ट 40 एकर्स का एक मिक्स यूज डेवलपमेंट बनाया है। वो मिक्स यूज डेवलपमेंट जो है उसमें 17 लाख स्क्वायर फुट का आपका मॉल का स्पेस है, रिटेल मॉल। आपका जो ऑफिस है, ऑफिस स्पेस के 2 बड़े बड़े टावर्स हैं। और क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, ये इससे पहले वहां पर L&T रियलिटी ने जो बॉम्बे की, द हार्ट ऑफ बॉम्बे इज द लोकल ट्रेन, तो सीवुड्स धारावी का जो मेट्रो जो लोकल ट्रेन स्टेशन है, वो L&T ने ही बनाया था 2010-11 में। उसके बाद उनको पूरा का पूरा टेंडर जो है वो सिडको अथॉरिटी जो न्यू बॉम्बे को मैनेज करती हैं, जैसे दिल्ली में DDA है, बॉम्बे में MMRDA है, बैंगलोर में कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड है, न्यू बॉम्बे के लिए सिडको है। उन लोगों ने फिर इनको अलाउ करा कि बाकी डेवलपमेंट में ये लोग, बाकी लैंड पार्सल में ये लोग अपना कमर्शियल ऑफिस का बिल्डिंग, रिटेल स्पेस सब कुछ बना सकते हैं। तो 12 लाख स्क्वायर फुट का रिटेल स्पेस बनाया हुआ है L&T ने, विच इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फोर्थ फ्लोर से ऊपर आकर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंट। 2 बड़े बड़े टावर्स हैं, टावर 1 और टावर 2, जहाँ पे SBI, सेंट गोबेन, वीवर्क, मॉल में आपके वेस्ट साइड, H&M, प्यूमा, ये तरीके के क्लाइंटेल्स ऑलरेडी बैठे हैं। ये दोनों टावर्स ऑलरेडी 2019 और 2019 एंड में डिलीवर हो चुके हैं। वन ऑफ द टावर्स में हम लोगों ने 4 क्लाइंट साइन करे हैं, अमाउंटिंग टू क्लोज टू 1,50,000 स्क्वायर फुट। ये जो करंट अपॉर्चुनिटी है, ये हम टावर 1 के 3rd फ्लोर की बात कर रहे हैं, जिसमें विंग C जो पूरा का पूरा है वो पूरा ऑक्यूपाइड है विद अ टेनेंट नेम्ड पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड। ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान है ऑफ L&T रियलिटी सीवुड। तो आप, ये ट्रैक है सीवुड्स ट्रेन का, इस ट्रैक के इस तरफ आप देखेंगे ये पूरा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जिसकी डिलीवरी अभी 6 महीने बाद चालू होनी है। और उस तरफ में आपका मॉल है नीचे, और ऊपर टावर 2 और टावर 1 है। अभी हम बात कर रहे हैं टावर 1 की। टावर 2 L&T ऑलरेडी पूरा का पूरा बेच चुका है, उसमें छोटे छोटे ऑक्यूपायर्स थे। These are some internal actual images of the development, क्योंकि ज्यादातर टेनेंट्स ने अपना इंटीरियर, अपना फिट आउट्स खुद किया है। उससे ये पता चलता है कि वो लोग कितना किसी प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं, क्योंकि वो खुद प्रॉपर्टी की वैल्यू जितना खर्चा कर देते हैं अपने फिट आउट, अपने इंटीरियर्स। टेनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, टेनेंट इज अ कंपनी जो रिलायंस और ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट फंड ओन करता है। दे मैनेज एंड ऑपरेट द लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर आंध्र प्रदेश से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर गुजरात तक जाती है, अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर्स। और इंडिया का जो नेचुरल गैस ग्रिड है, उसका बहुत क्रिटिकल पैच है ये। सम मोर इन्फो रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट। आज आप देखते हैं तो हमको ये ट्रांजैक्शन अप्रोक्सीमेटली 12,250 रुपये पर स्क्वायर फुट का पड़ रहा है। इसी डेवलपमेंट में आजू बाजू में आप देखेंगे there are transactions for as high as 15,600 rupees। एवरेज आप देखेंगे तो 14,000, 14,500। तो आज क्योंकि L&T के साथ हमने 4 क्लाइंट्स, 3 अलग अलग फ्लोर्स एक्वायर करे हैं, एंड वी हैव टेकन अ लोड ऑफ देयर चेस्ट, हमको आज डे 1 पर कम से कम 18 से 20% के डिस्काउंट पर हर ट्रांजैक्शन पड़ रही है, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। टेनेंट जो बैठा है, क्या वो मार्केट से बहुत कम या वो मार्केट से बहुत ज्यादा रेंटल दे रहा है? दिस इज द डेटा, द एक्चुअल डेटा फ्रॉम CRE मैट्रिक्स एंड और योर IPC रिसर्च। हिंदुस्तान पोर्ट, विच इज अनदर कंपनी, सबसे कम
रेंटल आप देखेंगे 84 रुपीज, मैक्सिमम रेंटल आइशर मोटर्स का 95। आज पाइपलाइन इंफ्रा जो करंट अपॉर्चुनिटी है वो 91.5 रुपीज के रेंट पर है, जो कि इन लाइन विद द मार्केट है, 84 से 95 के बीच में। तो आपका टेनेंट को कल को जब अपने रिन्यूअल्स के बारे में सोचना है या मैं मार्केट में कहीं और जा सकता हूँ, दिस ब्रिंग मोर स्टिकीनेस कि आपको जहां से रिटर्न आ रहा है वो टेनेंट के पास क्या क्या और रीजंस हैं डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पर रहने के, राइट। दीज आर अदर टाइप ऑफ कंपनीज एंड क्लाइंटल जो आपके इस डेवलपमेंट गैलेंटी स्कूल डेवलपमेंट के आसपास में, आईडीबीआई बैंक, यूटीआई, केपीएमजी, पारस डिफेंस, विप्रो, एक्सेंचर, मॉर्निंग स्टार, आईबीएम, these are the clientels who have most of them have their national headquarters, their corporate offices of India based out of New Bombay. Basic financials. So Pipeline Infra Limited 91.5 रुपीज का रेंट दे रहा है। उनका पहला एस्केलेशन 4th ईयर में डायरेक्ट 15% का है। उनका 5.5 साल का लॉक इन अभी भी बचा हुआ है, 6.5 साल का लीज बचा हुआ है। टोटल ट्रांजैक्शन 47.5 करोड़, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जो भी लीगल ड्यू डिलिजेंस हुआ है उसके साथ आपका पूरा ट्रांजैक्शन का वैल्यू है 53.3 करोड़। फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो मिनिमम 25 लाख होता है आपका बेसिक रेंटल इनकम, अलॉन्ग विद जो हम फर्स्ट ईयर में अपना मैनेजमेंट फी वेव ऑफ करते हैं, वी कॉल दैट प्री बुकिंग ऑफर। तो एक वो आपको 1% का प्री बुकिंग ऑफर। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन 30, 40, 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, उसमें टेनेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बहुत बड़ा होता है, तो वो भी एफडी में पार्क होता है, उससे भी जो पैसा आ रहा है वो आपके रेंटल इनकम में ऐड हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस इस वाले प्रॉपर्टी में, इस प्रपोजल में बहुत मार्जिनल है, 0.02%, क्योंकि आप को लैंडलॉर्ड बन रहे हैं तो मेंटेनेंस कभी भी लैंडलॉर्ड के सर पे कमर्शियल रियल एस्टेट में नहीं होता, वो टेनेंट के ही सर पे होता है, तो वो पाइपलाइन इंफ्रा के ही सर पे है। आपके ऊपर साल में मुश्किल से 2,000 रुपए का पूरे साल में प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस एज अ लैंडलॉर्ड है, और सिर्फ आपका मैनेजमेंट फी का एक्सपेंस है जो फर्स्ट ईयर में आपको नहीं लग रहा। प्री बुकिंग ऑफर 25,000 प्लस मैनेजमेंट फी 25,000 माइनस। आप बेसिक अपने रेंटल देख रहे हैं तो वो 8%, 8.1% के एवरेज से हर साल ग्रो कर रहे हैं ऑन अ 3-4 ईयर साइकिल। कैपिटल के ऊपर 6% का ग्रोथ बहुत इजीली अचीवेबल है, क्योंकि आज प्रॉपर्टी को 18-20% डिस्काउंट पर लिया जा रहा है। सो एज अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एज अ लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन, आप आराम से 12.8 से 13.5 तक का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेंट प्लस कैपिटल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक थीसिस, इट्स अ लीड सर्टिफाइड अवार्ड विनिंग ग्रेड ए प्लस प्रॉपर्टी। हर तरीके के क्लाइंटेल, मोस्टली कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिस, हर तरीके के बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन देयर मॉल सब यहाँ पर है। डिस्काउंटेड प्राइस, तो फेवरेबल प्राइस परचेज अपने को मिल रहा है, परचेज प्राइस। टेनेंट जो है इट्स अ कंपनी को ओन्ड बाय रिलायंस अलॉन्ग विद ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 9.1% का आपका ग्रॉस एंट्री यील्ड है, आपके हाथ में 8.1% का आपका नेट ऑफ रिटर्न है प्री टैक्सेस। 5.5 ईयर्स का लॉक इन, 6.5 ईयर्स का लीज आपका आज भी बचा हुआ है। बेसिक थीसिस आपका मिनिमम 25 लाख हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। पहले साल में आपका 1% का रेंटल टॉपअप है, मतलब आपको कोई मैनेजमेंट फी नहीं लग रही है। मेरी बेसिक मैनेजमेंट फी स्टैंडर्ड 1% होती है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। परफॉर्मेंस फी तभी किक इन करती है जब सेल ऑफ द एसेट के टाइम आपका रेंट अलॉन्ग विद कैपिटल अपसाइड 10% के हर्डल रेट के ऊपर जाता है। तो फॉर एग्जांपल वो आपका एग्जिट 12% पे होना है पोस्ट एक्सपेंस, तो जो 12 माइनस 10 2% का अल्फा है, मैं उसमें आपके साथ 20-80 का स्प्लिट करता हूँ, तो 12% IRR घर लेने की बजाय आप उसमें से 0.4 मेरे को दे रहे हैं, 2% का 20, आप 11.6 बेसिकली घर लेके जा रहे हैं। स्ट्राटा, जैसे कि आपको हमने बताया, जयपुर, पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, होसूर, दीज आर द काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 1 या 2 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। ये एसेट खत्म करने के बाद वी विल बी क्लोजर टू 900 करोड़, अप्रोक्सीमेटली मैनेजिंग 28 मिलियन स्क्वायर फीट। दीज आर द क्लाइंटेल्स जो
अलग अलग टेनेंट्स हमारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में है. Sudarshan and Priyanka, they are the co-founders of the company. They both are based in Bangalore. ये बाकी वर्टिकल हेड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. इन्वेस्टर डैशबोर्ड आप सब लोग देख ही चुके हैं. सो बैंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है. मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ अभी. एंड वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस फ्रॉम पुणे एज वेल. तो बॉम्बे और पुणे में मिला के करीबन 12-15 लोग काम करते हैं. लार्जर टीम इज बेस्ड आउट ऑफ द बैंगलोर ऑफिस. I think Ashutosh, we can open the session for queries. अगर कोई भी चैट बॉक्स में क्वेरी डालना चाहता है या अनम्यूट करना है सबको तो अनम्यूट भी कर सकते हैं. Got it? Okay, so thank you वैभव जी. आज की प्रेजेंटेशन आई मतलब इट वाज रियली वेरी अमेजिंग. इतने सिंपल तरीके से आपने इतने अच्छे से चीज़ों को कवर करा एंड एसेट के बारे में आपने बताया एंड किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, क्या क्या हमारे टेनेंट्स अभी तक स्टार्टर ने क्या क्या काम किया. इसके अलावा अगर किसी को जितने भी लोग हैं हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, अगर कुछ माइंड में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सो वैभव जी इज हियर. सो प्लीज हनी अरोड़ा टू एवरीवन. वैभव जी देखिए कुछ क्वेरीज हैं यहाँ पे. क्लाइंट अगर इन्वेस्ट करने से पहले साइट विजिट करना चाहता है तो पॉसिबल है. सर L&T सीवुड्स ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है. नीचे मॉल है 4 माले का, ऊपर 2 ऑफिसेज हैं. तो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, तो आप कभी भी जा सकते हैं. मतलब L&T उसका ओनर है ऑफ कोर्स, बट मॉल तो 2016-17 से चालू है, तो कभी भी कोई भी जा सकता है. क्या हम एज टाटा हम L&T की बिल्डिंग में बैठते हैं? नहीं, हम लोग का ऑफिस जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. तो आप जाकर साइट देख सकते हैं. कोई वो नहीं है उसमें, कोई डिफिकल्टी नहीं. एग्जिट होराइजन फॉर ऑल एसेट्स 3 to 4 एज पर स्टार्टर्स बिजनेस प्लान. नहीं मुकेश जी, ऑफिस स्पेस के लिए जैसे आप इस एसेट के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगा 3 से 4 साल इज द राइट टाइम. बट अगर आप वेयर हाउसिंग या इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 6 साल का टाइम देखना चाहिए. तो वो डिपेंड करता है एसेट टू एसेट. कमर्शियल में अभी तक हम लोगों ने 4 तरीके के एसेट्स ही करे हैं: रिटेल, ऑफिस स्पेस, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला वेयर हाउसिंग, स्टोरेज वाला, और फैक्ट्रीज. मतलब इंडिया की लार्जेस्ट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रो प्लास्टिक, जो पूरे यूरोप के लिए टॉयज बनाती है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टॉयज फ्रॉम इंडिया. माइक्रो प्लास्टिक का इंडिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 8.5 लाख स्क्वायर फुट, वो हमने किया है. रिसेंटली उस यूनिट में माइक्रो प्लास्टिक का एक नया शूट हुआ है जो इंडिया के टॉय मार्केट का होराइजन बताता है. तो इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग अगर रहेगा तो डेफिनेटली आपको 5 से 6 साल का होराइजन देखना चाहिए. ऑफिस स्पेस के लिए, करंट अपॉर्चुनिटी के लिए 3 से 4 साल. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? रेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन बोथ. क्योंकि आप खाली प्रॉपर्टी में पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप रेंटेड आउट प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं, तो इनकम तो आपकी डे 1 से जनरेट हो रही है. और क्योंकि सामने वाले आदमी को जरूरत थी जब स्ट्राटा उस ट्रांजैक्शन में घुसा, तो पहली चीज तो प्रॉपर्टी को डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया जा रहा है, तो आज ही आपके पास एक वैल्यू अप्रिसिएशन है. तो पैसा अगर डालना है कमर्शियल रियल एस्टेट में या किसी भी इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में, कमर्शियल इसके लिए क्योंकि कमर्शियल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स हैं, तो वो दोनों चीजों के लिए डाला जा रहा है. पैसिव इनकम एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन, किसी एक चीज के लिए नहीं. ओके, इसके अलावा एनीथिंग मोर? नहीं, इधर पे तो कुछ नहीं है. ओके, ठीक है. पंकज जी, विल रेंटल पे आउट विल बी टिल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग? पंकज सर, इसमें एक टेनेंट बैठा है. जो टेनेंट जो है वो पाइपलाइन इंफ्रा है. पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड एज अ कंपनी 2020 से यहाँ पर बैठी है. उनका 3 साल का लॉक इन और 9 साल का लीज था. हमारे ट्रांजैक्शन में घुसने से पहले वो लोग ऑलरेडी अपने
3 साल के लॉक इन को 8 साल का लॉक इन बना चुके हैं। तो 5.5 साल का लॉक इन पाइपलाइन का अभी भी बचा है, 6.5 साल का लीज पीरियड अभी भी बचा है। पाइपलाइन जब तक बैठा है, वो कल को और रिन्यूअल करता है या कोई और बंदा भी आता है, तो जब जब पूरा का पूरा टेनेंट बैठा है, तो ऑब्वियसली वो इनकम आ ही रही है। लाइफ लॉन्ग का इसमें सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्या स्ट्राटा चाहता है कि सारे इन्वेस्टर्स लाइफ लॉन्ग तक इस प्रॉपर्टी में बैठे रहे? आंसर इज नो। जैसे कि मैंने मुकेश सर को बताया कि इस एसेट के लिए ऑफिस स्पेस एसेट है, और नवी मुंबई एयरपोर्ट, ट्रांस हार्बर लिंक, यही 2 ही ग्रोथ स्टोरीज है न्यू बॉम्बे की, जो अगले 2 साल में ऑपरेशनल हो जाएंगी। सारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव बनने के बाद और 1 साल रुकना कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि मार्केट की मैच्योरिटी कितनी होने वाली है। तो 3 से 4 साल का होराइजन इज द बेस्ट होराइजन टू सेल ऑफ दिस एसेट। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर रेंटल इसका कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो रेंटर आता है तो वो रेंटर नेक्स्ट भी स्टार्ट हो जाता है, तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए कंटिन्यू करेक्ट। तो वो वैसी सिचुएशन हो गई पंकज जी की, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 या 3 साल के लॉक इन वाला प्रोडक्ट होता, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, लेकिन ये मार्केट में 5-6 साल तक का ग्रोथ है, तो स्ट्राटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एसेट मैनेजर बन जाती है कि मैं जब तक पहले वाला 2-3 साल वाला क्लाइंट निकले, तब तक मैं ऑलरेडी किसी दूसरे टेनेंट को लेकर आऊं, तो उसका अप्रूवल में मेरे को आप लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास ही आकर लेना है। बट करेक्ट, क्योंकि लैंडलॉर्ड आप ही हैं। पहले फेसबुक बैठा था, फेसबुक निकला और गूगल आ गया, तो वो पूरे का पूरा जो टाइम है, उस पूरे टाइम पीरियड में पूरा का पूरा रेंटल जो जा रहा है, वो पहले फेसबुक के थ्रू आ रहा था प्रोबेबली 8%, बाद में गूगल आया प्रोबेबली 8.1%, तो वो इन्वेस्टर्स को जा ही रहा है, क्योंकि एसेट अभी तक बेचा नहीं गया। तो जब तक एसेट बेचा नहीं जा रहा, इन्वेस्टर्स को पैसिव इनकम तो चल ही रही है। जब एसेट बेचा जाएगा, तब कैपिटल अपसाइड जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ सर। जैसे आप स्टेटा के बाद में जो हम लोग इन्वेस्टर रहेंगे वो तो कंटिन्यू रहेंगे। स्ट्राटा के बाद? हाँ, स्ट्राटा के बाद स्टेटा आप निकल गए वहां से, जो इन्वेस्टर तो उसमें रहेंगे ही। स्ट्राटा कहाँ से निकल गया? लेकिन जैसे आपका जो मैनेजमेंट पीरियड है उसके बाद में अगर आप निकल जाते हैं तो इन्वेस्टर का मेरा मैनेजमेंट पीरियड एसेट के बेचने तक है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी को 3 साल के बाद बेचा गया और आप उसमें इन्वेस्टर हैं, हाँ, तो 3 साल तक आपने मंथली इनकम एंजॉय किया, हाँ, और 3 साल के बाद एसेट को बेचा गया, तो पूरा कैपिटल का पैसा आपको आ गया। अच्छा। प्रॉपर्टी अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्रोबेबली से किसी आशुतोष ने खरीद ली, हाँ, तो आपको आपका रेंटल इनकम आ गया, आपको आपका कैपिटल गेन आ गया, पूरा प्रॉपर्टी एग्जिट हो गया ना, तो आप भी एग्जिट हो गए और स्टार्टअप भी एग्जिट हो गया। अब कौन सा इनकम आएगा? नहीं, मतलब वो 3 साल के बाद में अगर प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होता है तो इन्वेस्टर को मिल जाएगा डबल या कुछ इन्वेस्टर को उसका कैपिटल गेन्स का पैसा मिल गया, खत्म। अच्छा। अब आपको वो पैसा दोबारा से, आपको लगा कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैंने 25 लाख डाला था, मेरे को टोटल रेंट प्लस कैपिटल अपसाइड मिला के 35 लाख मिला है, मैं 10 लाख का प्रॉफिट रखता हूँ, 25 लाख फिर से किसी स्टार्टअप की दूसरी अपॉर्चुनिटी में डाल देता हूँ, तो डाल सकते हैं। तो डाल सकते हैं ना, वो कितने इयर्स के बाद में, कितने टाइम के बाद में हमको दूसरा? सर आप अभी भी साथ में डाल सकते हैं। मेरे पास इस अपॉर्चुनिटी में 25 लाख रुपए डालो, मैं नेक्स्ट वीक कोई नई अपॉर्चुनिटी निकालूंगा, आप उसके अंदर 25 लाख रुपए डाल दो। नहीं, अभी का बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो 3 साल 4 साल के बाद में जो सारा पीरियड खत्म हो जाता है, लॉक इन पीरियड। आपको नहीं डालना उसके बाद पैसा निकाल के, तो आप मत डालो, उसमें कोई फोर्स थोड़ी है। आपके पास 25 लाख रुपए ही थे, जो आप अगले 5-6 साल तक स्पेयर कर सकते थे किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने वो 25 लाख रुपए आज डाल दिए, 3-4 साल में एसेट बिक गया, इसके बीच में आपको 2-2.25 लाख का इनकम हर साल जो है वो आ रहा है, डिवाइडेड बाय 24 मंथ ऑन मंथ आ रहा है। 3-4 साल में पूरा प्रॉपर्टी एग्जिट हो गया, आपको आपका कैपिटल अपसाइड मिल गया, आपका पैसा आपके पास वापस, आपको दोबारा डालना है किसी प्रॉपर्टी में डालिए, नहीं डालना मत डालिए, बस। मतलब वही मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लास्ट में था कि
कि एक बार 25 लाख डाल देने के बाद में लाइफ टाइम जब तक बिल्डिंग रहेगा तब तक वो रेंटल मिलते रहेगा? ऐसा बिल्डिंग मेरा रहने का मतलब नहीं है, आप जब तक लैंडलॉर्ड रहेंगे, बिल्डिंग तो 100 साल की लाइफ के हिसाब से बिल्डिंग बनी है, 2 साल पहले तो हाँ डिलीवर हुई हाँ है। हाँ बिल्डिंग के रहने तक अगर आपको इसमें रहना तो गलत जगह पैसा डाल रहे हो। आशुतोष अच्छा को फोन अच्छा करो, वो अच्छी जगह बता देगा आपको। अच्छा। रियल एस्टेट में पैसा 20 साल के लिए थोड़ी डालेंगे। हम्म। मार्केट 3-4 साल में मैच्योर हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। हेलो ठीक, ओके। हेलो। यस यस सर, आई कैन हाँ हियर जी, यू। हाँ जी। मुझे ये कहना था कि अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज करना है आफ्टर 3-4 इयर्स लॉकिंग मेच्योरिटी पीरियड जो आप कह रहे हैं, जैसे हम लोग 4 इयर्स का पकड़ते हैं, तो इन दैट केस वो जो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबका कंसेंसस जरूरी है। अगर सबने अगर consensus- 75% का कंसेंसस जरूरी है सर। हाँ तो इंडिया अगर की सब, हाँ जी, तो इंडिया उसमें अगर 75% अगर एग्री नहीं करते, दैट मीन वो उतना प्रॉपर्टी उतना देर होल्ड करना पड़ जाएगा फिर, और आगे जब आप तक ही सब। ओनर है सर। नहीं नहीं, हम तो अकेले ओनर हैं फॉर एग्जाम्पल। नहीं नहीं, लेकिन तो आप ही के साथ आप अंडरस्टैंड, रवि सर एक फैक्ट अंडरस्टैंड करिए। अगर 20 करोड़ आपके पास है, किसी इन्वेस्टर के पास है जो इस कॉल पर है, वो फ्रैक्शन में पैसा नहीं डाल रहा है आदमी। फ्रैक्शन में पैसा जो आदमी डाल रहा है या स्ट्राटा जिन इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है, यू ऑल आर लाइक माइंडेड पीपल, बट यू ऑल आर अनरिलेटेड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, 4 दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी आज से 20 साल पहले भी खरीद सकते थे को ओनरशिप में। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फ्रैक्शनल एक नया वर्ड है। मतलब इसका है को ओनरशिप। प्रॉब्लम क्या होती है, आप 4 दोस्तों ने प्रॉपर्टी खरीदे और एक बंदे ने 2 साल के बाद कहा कि मैं तो जा रहा हूँ कनाडा। बाकी 3 लोगों ने बोला कि बॉस हम तो तुमको नहीं जाने देंगे। तो प्रॉपर्टी चली जाएगी कोर्ट में, क्योंकि आप लोगों ने जो लीगल पेपर साइन किया है ना, वो लीगल पेपर का एक ही अग्रीमेंट बनता था ट्रेडिशनली भी, और जो आज भी लोग बनाते हैं 4 दोस्तों में, जो होता है पार्टनरशिप डीड या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है ना, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आपकी एंट्री और एग्जिट आपके को ओनरशिप के मॉडल में बाकी लोगों पे डिपेंडेंट है। दैट इज वन। सेकंड, पैसे आपके पास 20 करोड़ नहीं है, लेकिन आपके पास हमेशा 1-2 करोड़ रुपए पड़े होते हैं। आपको पता है कि मेरे को रेजिडेंशियल में तो ये पैसा डालना नहीं है, और हर बार आपको 15-15, 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके आजू बाजू घूम रही है। आप सोच रहे हो कि बाकी 12-13 करोड़ कहाँ से आएगा। तो कब तक फैमिली और फ्रेंड्स को आप ढूंढेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं। कैसे? पहली चीज लीगल स्ट्रक्चर, कि प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और एचयूएफ का नाटक नहीं बना हो रहा है। सारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, कंपनी बनाई जा रही है प्राइवेट लिमिटेड। आज रवि केडिया ने इन्वेस्ट करा, उनको रुकना था 3-4 साल तक कि पूरे प्रॉपर्टी का बेनिफिट लें, कैपिटल अपसाइड का। बट किसी रीजन से उनको बीच में निकलना है, तो आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। अपने दोस्त को जाके आप अपना 25 लाख का शेयर बेच दीजिए। ना ही स्टार्टअप को रोक सकता है, ना ही आशुतोष रोक सकता है, ना ही जवाहर सर रोक सकते हैं, ना ही कोई और इन्वेस्टर रोक सकता है। दैट इज वन। सेकेंड, मुझे चाहिए जवाहर सर यूएस में बैठकर मेरी इस बॉम्बे की प्रॉपर्टी में पैसा डालें। आके विजिट तो कर नहीं सकते वो। मुझे चाहिए आशुतोष दिल्ली में बैठकर मेरी बॉम्बे की प्रॉपर्टी में पैसा डाले। क्या ये दोनों रिलेटेड है? ये दोनों अनरिलेटेड है। तो क्या करा मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल, मार्केट रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉडल, जो भी चीज जो खुद 20 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए आप अपना होमवर्क करेंगे, वो सारी चीज को मैंने ऑनलाइन डाल दी। तो अब लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स, आपकी तरह ही लाइक माइंडेड पीपल, बट दे आर अनरिलेटेड विद ईच अदर, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। वो लोग, सब लोग शायद टाटा को जानते हैं जो इस प्रपोजल को उनके पास लेकर आया है और जो ये इस पूरी चीज को स्ट्रक्चर कर रहा है। तो अनरिलेटेड पीपल बट लाइक माइंडेड पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू दीज प्रोडक्ट्स लाइक स्ट्राटा। अब मुझे इसमें 2 चीजें सिक्योर करनी है। क्या? एक आदमी राज नहीं करेगा इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, तो मैं आपको 10% से ज्यादा पैसा नहीं डालने दूंगा। इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। मैं हूं मेकर एंड चेकर, मैं ही एसेट मैनेजर हूं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बाकी 100 लोगों का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करूं। दैट इज वन। मिनिमम आपका 25, मैक्सिमम आप, आपकी वाइफ, आपका बेटा। अगर मुझे पता चलता है आप 4-5 लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 4-5 लोगों को मिलकर मैं 10% से ज्यादा पैसा नहीं डालने दूंगा। सेकेंड, आप लोगों के हाथ में ही ओनरशिप रहनी चाहिए। मैं मार्केट में जाके 3 साल के बाद प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। मैं मार्केट में जाके 3 साल के बाद टेनेंट को भी नहीं बदल सकता। ओनरशिप आपकी है। उस चीज को मैंने, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है,
उसका डेमोक्रेटिक वोट मेजोरिटी बना दिया। क्या 25 लाख कोई डाल रहा है, 50 लाख कोई डाल रहा है, 1 करोड़ कोई डाल रहा है, टू द ट्यून ऑफ 5%, 10%, व्हाटएवर, हर मेजर डिसीजन मेकिंग के लिए 75% मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। मैं 3 साल बाद मार्केट में गया, मैंने बोला कि ये राइट टाइम है एलएनटी की प्रॉपर्टी को बेचने का। एयरपोर्ट पिछले साल बन चुका है, जो इंफ्रा डेवलपमेंट होना है वो हो चुका है। मेरा ये मानना है एज एन एसेट मैनेजर, हमको ये एसेट अभी बेच देना चाहिए। 100 रुपए का 105 रुपए मिल रहा है, बेचने के लिए मुझे आपका कंसेंट चाहिए 75% का। फॉर सम रीजन इन्वेस्टर्स ने बोला नहीं नहीं वैभव, कैपिटल वैल्यू सेफ है, 8, 8.5, 9% का रिटर्न बहुत अच्छा है, हमको तो नहीं बेचने का। मत बेचो, मेरे को मेरा 1% का फीस देते रहना। अगले साल जब मार्केट सैचुरेट होगा और मैं फिर से आपके साथ एजीएम में डिस्कशन करूंगा कि अब 100 का 105 नहीं बॉस, अब 100 का 103 मिल रहा है मार्केट में, तो आप मेरे को नहीं उसके लिए दोष दे सकते। मेरे लिए एसेट की साइकिल तभी खत्म होगी जब मैं इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाकर दे रहा हूं। मैं आपके पास आया, सही टाइम पर आया कि 4 बायर रेडी हैं खरीदने के लिए, और ये सब इंटेलिजेंट लाइक माइंडेड लोग हैं। हर आदमी 25-50 लाख रुपए डालकर बैठा है एक बार में। फॉर सम रीजन उनको लगा नहीं, हमको तो 8-9% का रिटर्न ही बहुत अच्छा लग रहा है, हमको कैपिटल अपसाइड से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना हो, ओनरशिप आप ही के पास रहे। जो आज तक नहीं होता आया है, आपके ये मोतीलाल ओसवाल फंड, IIFL फंड, किसी डेवलपर का फंड, जितने भी ये रियल एस्टेट के फंड बनते हैं, आधे से ज्यादा पैसा जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जो सबसे बड़ा रिस्क है रियल एस्टेट का। कब बनेगी प्रॉपर्टी पता भी नहीं है, आप ही का पैसा आपको दे रहे हैं मंथली रिटर्न से। दूसरी चीज, वो लोग एक नंबर डालते हैं, अगर हमने 12% का IRR अचीव कर लिया, ओनरशिप हमारे पास है, हम प्रॉपर्टी को बेच देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में पैसा फंड वाला ही कमाता है सिर्फ, मुझे वो करना ही नहीं है। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर करूंगा, मैं आपको सारा दुनिया का ज्ञान ला कर दूंगा, पैसा आप डालेंगे, ओनरशिप भी आपकी है, मैं सिर्फ आपका एडवाइजर बन के आपको चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं जाके प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, मैं आपके साथ प्रॉपर्टी में ओनर हूं ही नहीं, मैं एसेट मैनेजर हूं आपके साथ। 3 साल के बाद 75% लोगों ने मना कर दिया। आपके जैसे 4 लोग हैं जो कहते हैं अरे यार बात तो सही बोल रहा है स्टार्टअप, कोई बात नहीं, मेजोरिटी ने मना कर दिया, आप अपना इंडिविजुअल एग्जिट लेके निकल जाओ, या तो मेरे रीसेल प्लेटफॉर्म पे ले लो, या अपने किसी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बेच दो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आई होप दिस आंसर्स मोस्ट ऑफ योर क्वेरी। Jawahar sir, I think you were about to say something in the middle. No, basically, I think you've answered most questions everybody has. जो है questions, presentation में भी काफी आंसर हो जाता है। मेरा एक question common होता है, which you are a new company, you still don't have sale का जो आप projection करते हैं, वो अभी तक है नहीं, पर you are new company, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ है, and 4-5 साल का projection है। But the first sale is happening in next 3 months, like I told you. Wow, that is amazing. And 14.5% IRR post expenses. wow. Projection was not beyond 13%. And दूसरा सबसे बड़ा credibility जो स्टार्टअप को है, I feel existing investors are reinvesting quite a bit. More than 25 to 30% repeated investor. Wow. That is amazing. And जिस हिसाब से प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है 3-4-5 वीक में 50-40 का 50 करोड़ का, it says something by itself, And so there are many जो डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस तो सबको होने वाले हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने के हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जा रहा है मेरा, ओवरऑल प्रोजेक्ट में, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, मल्टीपल ऑफ रीजंस, जो आपके साथ एसोसिएट है, जैसे प्रोजेक्ट्स आप लाते हैं, जो री इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑल दो फैक्टर, इतना जल्दी बिक जाता है आपका प्रोजेक्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीक में। ऑल दोज रीजंस, आई थिंक कॉन्फिडेंस जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, सबसे ज्यादा होता है रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। ओके, चलो गेन तो होगा, तब होगा, अगर 25 लाख का 8-9% गेन हुआ, करेक्ट, गुड, पर व्हाट अबाउट 25 लाख डूब गया,
तो वो सबसे ज्यादा होता है लोगों को। पर आपके साथ मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी पैसा, गारंटी तो किसी को मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो हिसाब से बट पैसा डूब नहीं सकता ना सर, राइट। बिकॉज से कुछ लोगों को ये मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, आशुतोष भी मुझसे कभी कभार पूछता है कि कभी कभार इन्वेस्टर्स बोलते हैं स्टाटा कल को बंद हो गया तो मैंने कहा अच्छी बात है, स्टाटा के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। क्या स्टाटा रातों रात बंद होने वाली कंपनी है? टाटा के पीछे कौन बैठा है? कोटक बैठा है, जेरोदा बैठा है, एलिवेशन बैठा है। फिर भी स्टाटा बंद हो जाता तो इन्वेस्टर का लॉस क्या है? पूरी दुकान बंद हो गई इन्वेस्टर की, या कुछ चालू है? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। स्टाटा ओनर नहीं है, राइट? स्टाटा एक प्रॉपर्टी मैनेजर है। आज आपकी 10 प्रॉपर्टीज अगर इंडिया में है जो आशुतोष मैनेज कर रहा है, ओनरशिप आप ही की है, आशुतोष उसके आपके लिए मैनेज कर रहा है। मैनेज करने का मतलब कि बस वो मेक श्योर कर रहा है कि टेनेंट जो है वो टाइम से रेंट दे रहा है और आपको पहुंचा रहा है। गॉड फॉरबिड आशुतोष, मतलब ये दिल पे नहीं लेना, अगर आशुतोष को कल को कुछ हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप थोड़ी कोई छीन के ले गया, नहीं लेके गया, राइट? रेंट तो तब भी दे ही रहा था बंदा। आपको एक ट्रैकेबिलिटी जो थी वो आशुतोष प्रोवाइड करा रहा था, और कल को एक टेनेंट जाता, दूसरे टेनेंट को लाने का जो ईज है वो आशुतोष आपके लिए कर रहा था इंडिया में। सो व्हाट विल गो रॉन्ग इफ स्टाटा गोज बस्ट टुमारो? मतलब ये कॉल के बाद किसी भी स्टाटा के बंदे से, वेबसाइट से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लोगों ने जिन्होंने पैसा डाला है बाकी 17-18 प्रॉपर्टीज में, वो कैपिटल सेफ है और वो रेंट आना ही है, क्योंकि टेनेंट के पास वो अकाउंट है जिसमें उसको हर महीने रेंट भेजना है, राइट? टाटा की एसेट मैनेजमेंट टीम टेनेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रही है, वो एक अलग इशू है, बट आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप कहीं नहीं गई। क्या चीज आपके लिए गड़बड़ हो गई कि आपको हर महीने जो पे आउट आ रहा है उसके साथ एक रेंट रिसिप्ट आती है, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आ रही है, वो नहीं आएगी। ये जो डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ उसका वो ट्रैकर बेसिकली आपका चला गया है, राइट? तो फिर इन्वेस्टर्स मार्केट में जाके किसी दूसरे प्रॉपर्टी मैनेजर को असाइन कर रहे हैं, बट can capital go for a toss? The answer is no. Can their monthly income get stopped? The answer is no. Will their ownership be will go for a compromise? The answer is no. But at the end of the day, पूरा स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद भी समवेयर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंसी स्टाटा के ऊपर है, क्योंकि प्रपोजल लाने वाला स्टाटा है, जवाहर सर को एसोसिएट करने वाला स्टाटा है, आशुतोष के 4 इन्वेस्टर्स को पैसा डलवाने वाला स्टाटा है। तो प्रैक्टिकली तो पब्लिक को ये अप्रिशिएट करना चाहिए और दुआ ही मनानी चाहिए कि स्टाटा को कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब स्टाटा नहीं है पिक्चर में, कुछ तो न्यूसेंस आपको फील होगा यार कि ट्रैकर नहीं है यार, मेरा डैशबोर्ड नहीं है यार, पैसे आपको आ रहे हैं लेकिन आप ये नहीं चेक कर पा रहे कि कंपनी के अकाउंट में कितने आए थे और मैं कितने % का शेयर होल्डर। पैसा लेकिन आपका अनसेफ नहीं हो रहा है। Basically this year जो मेरे लास्ट 3-4 years से प्लान था कि हाउ डू आई ब्रिंग मोर NRIs, कैसे ला सकता हूँ इंडिया में, तो वन ऑफ द बिगेस्ट fear, लॉट ऑफ NRIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं, लेकिन बहुत पैसा है NRI का। NRIs biggest fear was $1 billion, sir. Yes, and biggest thing was trust. Biggest thing was fear of losing money and everything. So we are only, हम लोग अभी launch कर रहे हैं very soon, and we are only going to launch projects like this, जहाँ पे NRI को trust build हो सके. And this is the first project we are going to launch US में, because उसमें मेरा reputation भी है, बहुत बड़ा reputation का सवाल है. And so we have to be very careful कि हम कौन सा project NRIs को दिखावें US में. So this is the first project we are going to launch very soon, within next 2-3 weeks. So I am very, very excited. And कि हम लोग US में भी launch कर रहे हैं, Canada में इस project को. So hopefully आपका project जो भी 4-6 week में finish होता है, तो hopefully जल्दी finish हो जाएगा. Let's see. Okay,
सो वैभव जी, डुरानी सर, आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे, सबका मैं रजिस्ट्रेशन देखता हूँ कौन कौन थे, एंट्रीज करवाता हूँ, एंड देन हम लोग वन टू वन अगर किसी का कुछ भी क्वेरी रहता है देन लेट अस। हाँ, उस बारे में बात Connect करना है मुझे next आपसे, उस बारे में बात करना है भी, आपको कॉल करके पूछना कुछ है ऐसे डाउट्स जो आपसे बनते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, चलो, बाय, थैंक यू डुरानी सर। Thank you.